क्या आप भी जानना चाहते हैं कि दिसंबर के महीने में आपके कौन से डिज़ायर्स फुलफिल होंगे और कौन से नहीं? Then this is the right video for you. Hello everyone, welcome to Kundli Yatra. I'm back again with another video. Today's will be a December tarot reading video, so it will be a monthly reading. In this video, we will cover your love life, finances, career, and your health. Please do remember that this is a general reading, so take what resonates and leave the rest. In case you need a personal consultation from me, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया हुआ है उस पर या तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप मेरी वेबसाइट www.kundliyatra.com पे जाकर भी अपने लिए एक रीडिंग बुक कर सकते हैं. सो नाउ व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Okay, so let's start with the reading now. I have the tarot cards here. Okay, so Aries, we'll start with your reading. Here from the deck we have the Fool and the Eight of Swords. Okay. So, Aries, what I feel is that, you've probably had a rough time in terms of love and relationships. Maybe you've just moved on from a relationship, you're trying to move on from that relationship, but the memories definitely exist. You're not able to let go of the past, but the month of December is definitely going to offer you something adventurous, something nice and new in terms of relationships, which will, bring that enthusiasm and that charm and that feeling of having butterflies in the stomach back again for you. So relationship wise, yes, it looks like there is a new beginning. In terms of finances, these two cards, they come as a warning as in, they urge you to save money. आपको सेव करके चलना चाहिए, ज़्यादा स्पेंड ना करें, ओवर स्पेंडिंग ना करें, माइंडलेस स्पेंडिंग की तरफ तो बिल्कुल भी ना जाएं, because as you see, the Fool card is definitely a new beginning. तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कुछ नए सोर्सेज बने अर्निंग्स के. कोई नया आपको या तो पे राइज मिले या आपको नया जॉब, सॉरी नॉट जॉब बट कोई ना कोई नया सोर्स ऑफ इनकम आपको ज़रूर मिलेगा फॉर श्योर. बट एक तो ये इनकम सोर्स जो होगा इसको स्टेबलाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा. द फूल इज़ नॉट अ वेरी स्टेबल एनर्जी. सेकेंड, अगर आप ओवर स्पेंडिंग करेंगे या बिना सोचे समझे स्पेंड करेंगे अपना मनी, so there may be a time when you may have to face a financial crisis or a situation where you're not sure of how you will move on with such less finances, or how you will move on with finances that are almost negligible. सो आपके हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट्स को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़े या फिनेंशियली कोई इश्यूज हों. अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है तो डेफिनेटली लेंड मत कीजिए, इट इज़ नॉट द राइट टाइम. सो दिसंबर में फिनेंसेस को थोड़ा संभाल के चलिए. In terms of career, there are definitely new opportunities coming up. अगर ऐसा कोई जॉब सिनेरियो है आपका जहाँ पे आप फंसे हुए हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकती है, या कोई भी करियर को लेके, जॉब को लेके कोई भी इंस्टेबिलिटी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
then know that new opportunities are definitely coming up for you. What I feel is, somewhere after the first week of December, things will become more clear for you. एंड करियर में आपके डेफिनेटली नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. अगर करियर की तरफ से आपको कोई स्ट्रेस है या आप ये सोच के बैठे हैं कि आपका जॉब चला जाएगा, हो सकता है चला जाए, लेकिन नया जॉब आपको डेफिनेटली बहुत जल्दी मिल जाएगा. In terms of health, again, maintain a certain routine for yourself. आप योगा कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप जिम जाइए, जिम ज्वाइन कीजिए, बट गेट योर सेल्फ मूविंग. बिकॉज अगर आप सेम स्टेट में रहेंगे, इट विल डेफिनेटली लीड टू फिजिकल इश्यूज. हो सकता है आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी ना रहे, या आपकी मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े इन द मंथ ऑफ दिसंबर. सो टू स्टे अवे फ्रॉम दिस एनर्जी, इट इज़ बेटर कि आप कोई अपने लिए नई एक्सरसाइज रूटीन आप फॉलो करें, आप कोई नया हॉबी फॉलो करें अपनी, विच कीप्स यू बिजी एंड हैप्पी. So yeah, we've come to the end of the reading for Aries. Now we'll start the reading for Taurus. Okay, so Taurus, we have the Ace of Pentacles and we have the Two of Swords. All right. Okay. Taurus. In terms of love, you're not sure whether this relationship is meant to be or not. You don't know where your relationship is headed. Right now, at least, you could be in that energy. If you are in this energy, then know that this relationship has a long-term future. There is a fair possibility कि अच्छे लंबे टाइम तक ये फ्यूचर में आपका रिलेशनशिप चलेगा. इन केस आप ये सोच रहे हैं कि आपको कमिटमेंट मिलेगा या नहीं, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या नहीं, तो डेफिनेटली वो आपको कमिटमेंट देंगे. कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है. आप इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, प्लीज डू नॉट फील anxious. Let go of all the anxiety that you have. कमिटमेंट इज डेफिनेटली कमिंग. पेंटिकल्स एनर्जी है तो थोड़ा स्लो हो सकता है आपके पार्टनर एक्शन लेने में, बट डेफिनेटली एक्शन लेंगे. All right. So, and for singles, I would say that you still haven't made up your mind कि आपको इस रिलेशनशिप में जाना है नहीं जाना है. So until and unless you're sure of what you want in terms of relationships, I would suggest कि आप कोई भी step forward ना लें. All right. Now coming to finances. Now Ace of Pentacles आया है तो definitely आपके from the financial perspective there is obviously not a very big issue or no issue at all. The problem is that in your mind you have blown up the situation. तो आपको situation जितनी खराब लग रही है in terms of finances, उतनी खराब वो है नहीं. There is still chance that you will be able to take control of your finances in case you feel that मेरा कंट्रोल नहीं है फाइनेंसेस पे, मेरे इन्वेस्टमेंट्स ठीक नहीं है, या मेरा हाइक नहीं हो रहा है, पे राइज नहीं मिल रहा है, या कोई नया सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिल रहा है. यू जस्ट ब्लोइंग अप द सिचुएशन इन योर माइंड. आप प्लीज़ एक्शन लीजिए, आप अपने फाइनेंसेस को प्रॉपरली प्लान कीजिए. यू विल डेफिनेटली गेट वेरी गुड रिजल्ट्स. ओके, नाउ कमिंग टू योर करियर. सो अगेन करियर में भी आपने सिचुएशन कुछ ऐसी बना रखी है अपने दिमाग में कि
या तो आपको लगता है कि आपका करियर आगे मूव नहीं कर रहा, या हो सकता है कि सच में कोई है आपके वर्क एनवायरनमेंट में, आपका कुलीग हो सकता है या कोई भी हो सकता है, वेर यू नो देर कुड बी अ फैक्टर ऑफ जेलसी between the two of you. I mean, that colleague is definitely jealous of whatever you have been able to achieve in your career. So obviously office politics से थोड़ा बचें, you know. ट्राई करें कि इधर उधर की गॉसिप में और लोगों की बातों में आप ना आए, एंड जस्ट फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन ऑन द न्यू प्रोजेक्ट्स दैट यू आर गेटिंग. देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट आपकी तरफ आ रहा है विच कैन propel your career growth in the right direction, and that is why people could be jealous of you. They could try to manipulate you or try to tarnish your image in one way or the other. So आप इन सब से थोड़ा बचते हुए अपने गोल को ध्यान रखें और अपने गोल की तरफ मूव करें. All right. In terms of health, again, this is not a very bad situation, but yes, mental health issues आपको definitely हो सकते हैं इस month. तो अच्छा रहेगा कि आप कुछ थेरेपी लें अपने लिए, कोई ऐसी हॉबी परस्यू करें जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको पसंद है, और अपनी मेंटल हेल्थ को किसी ना किसी तरीके से ठीक करने की कोशिश करें. तो मेंटल हेल्थ की तरफ ज़रूर थोड़ा सा सतर्क रहें, थोड़ा ध्यान दें ऑन योर needs, your bodily needs, your mental needs, and please take care. Yeah. So now let's start the reading for Geminis. Oops, I'm sorry. Yeah. The energies seem to be very, very high for Geminis. So definitely a change coming here is what I feel for Geminis, because the cards are falling off, and also while I'm shuffling the cards, I feel a very heavy energy around. Heavy in the positive sense, not so negative, but yes, there is a heavy energy. Okay. All right. So, Geminis. All right. So, in terms of relationship, Geminis, what I feel is that in the past, or till now, you could have dealt with a lot of issues in your relationship, as far as your partner and you are concerned. There could be misunderstandings in between. हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपके fights हुए हों, आपके issues हुए हों, कोई ऐसी बात हुई हो जिससे आपको लगे कि your partner is not understanding enough. But don't worry, that understanding is definitely coming in with the Three of Pentacles. ये relationship आपका ग्रो करेगा आगे, आप दोनों इंडिविजुअली भी ग्रो करेंगे विद इन द रिलेशनशिप, एंड this will take you a long way. Okay. So this relationship has a lot to offer. You should definitely learn the lessons coming your way and just move forward together. Try and make things better for each other, and put in your best to make this relationship work. In case you're single, देन हो सकता है कि आपके पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस जो हैं
वो आपको कहीं ना कहीं नए रिलेशनशिप में जाने से रोक रहे हो, but understand that this is the right time for you to move forward. If you have someone in your mind, if you're, you know, willing to approach someone, then you definitely should, because this relationship has a lot to offer. Okay, now in terms of finances, again, you हो सकता है कि आपने कोई चेंजेस लाए हैं अपने करियर में, जिस वजह से थोड़े थोड़े टाइम के लिए आपको फाइनेंसेस के पर्सपेक्टिव से ऊपर नीचे हो, थोड़े अप्स एंड डाउन्स आपको देखने पड़े. बट दिस financial break, or this financial these financial ups and downs will definitely टेक यू टूवर्ड्स समथिंग न्यू. कोई नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं. दिस ऑल्सो मेक्स मी फील दैट probably there could be a change in your source of income. मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम यहाँ पे हो सकते हैं. तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं एक जॉब और बिजनेस के बीच में जगल कर रहे हैं, या कोई तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, बिकॉज इट शोज कि आपके फाइनेंसेस डेफिनेटली मल्टीप्लाई होंगे. थोड़े हर्डल्स आएंगे बिकॉज ऑब्वियसली यू ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन थिंग टू द अदर, इट फील्स. बट आपके जो फाइनेंसेस हैं वो डेफिनेटली आगे जाके मल्टीप्लाई होंगे और बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होंगे. ऑल राइट. In terms of career, like I already said, you're transitioning from one thing to the other. हो सकता है आपने अपना जॉब छोड़ा है और आप बिजनेस की तरफ मूव कर रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि आप अपना जॉब छोड़ें और बिजनेस की तरफ मूव करें. ये अपने कंफर्ट को छोड़ने वाला कार्ड है. तो जिस जिस कंपनी में आपका कंफर्ट लेवल था, जो आपका वर्क एनवायरनमेंट था, उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे. यस, इनिशियली हो सकता है आपको टाइम लगे इसमें एडजस्ट करने में, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट दिस change, this change of work, change of environment, change of your profile or whatever, this will definitely push you towards growth. तो इस चेंज को प्लीज रोकिएगा मत. ऑलराइट. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, कोई पास्ट हेल्थ इश्यूज हो सकता है रीसर्फेस करें. कोई आपके मसल पेन हो, कोई जॉइंट पेन है, या कहीं आपको पहले कभी कोई इंजरी हुई थी. हो सकता है कि वो सारी डिफ़िकल्टीज कहीं ना कहीं रीसर्फेस हों, बट with the right kind of help from a medical professional and also your well-wishers, your family and friends, you will be able to overcome that. So overall, Gemini, this is a very decent reading. I think December generally has a lot of things to offer to you. All right, so now let's move on to Cancer. Okay, so we have the Lovers in reverse. We have the Three of Swords. Oh my god, these are very heavy energies. Alright, so because we've got two such heavy cards, I'll just I'll ask Tarot for clarity for you all, so that we can understand what exactly is happening here. Alright. So we have the Knight of Wands. Okay.
So, cancers, you're definitely going through some emotional upheaval as far as your relationship is concerned. There could be a breakup. हो सकता है कि आप दोनों आपस में compatibility issues फेस कर रहे हो या कोई ना कोई दिक्कतें तो डेफिनेटली हैं आपके रिलेशनशिप में. प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अगर आप समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, अगर अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली इस हार्ट ब्रेक से आप लोग बाहर आ सकते हैं. ये आप देख पा रहे होंगे 3 of Swords. ये 3 of Swords, ये जो हार्ट ब्रेक की हम बात कर रहे हैं यहाँ, जो एक बहुत हैवी ब्रेकअप वाली एनर्जी है या एक बहुत ही हैवी इमोशनल एनर्जी है. इट इज़ बिकॉज बेसिकली आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बन नहीं पा रही. देयर इज़ लव फॉर श्योर, प्यार है, बट कहीं ना कहीं एक जो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए जो पेशेंस चाहिए वो आप लोग लूज कर रहे हैं. सो वंस यू आर एबल टू गेट पेशेंस, लाइक थोड़ा सा सोच के समझ के चलेंगे तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आगे वर्क करेगा. Otherwise, I do see, things moving roughly for you, at least in terms of your personal life. All right. So, in terms of finances, again, हो सकता है कि आपने पास्ट में कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस झेला है, बट नो दैट थिंग्स आर नाउ वर्किंग इन योर फेवर. The universe definitely has your back, and if you continue working towards stabilizing your finances, आप काम करते रहेंगे, ऑनेस्टली काम करते रहेंगे तो आपके finances definitely stable होंगे and you will be able to achieve your financial goals, whatever goals you have for yourself in the month of December. So yeah, all right. Now moving on to your career. करियर में आप डेफिनेटली अपना कंफर्ट जोन आपने छोड़ा है या आपको कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है. इट कुड बी ड्यू टू ऑफिस पॉलिटिक्स, इट कुड बी बिकॉज your company is not able to maintain the kind of workforce that they had earlier. हो सकता है कंपनी में इंटरनली कोई इशू हो, कंपनी को फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं या कोई भी किसी भी तरीके के लॉसेस यहाँ पे हो सकते हैं. सडन जॉब चेंज हो सकता है, सडन टर्मिनेशन हो सकता है, सडनली आपका कोई अनवांटेड ट्रांसफ़र हो सकता है फॉर श्योर. बट जो नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी वो भी सडनली आएगी. मतलब जितने सडनली आपका जॉब गया है उतनी ही सडनली आपको नया जॉब मिलेगा और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए आगे बढ़ने के लिए, आपके लिए ग्रो करने के लिए. इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. सो ये जो आपके आपको जो एक सडन जॉब लॉस हुआ है या जो करियर में सडन चेंजेस आपके आए हैं, नेगेटिव चेंजेस, डू नॉट टेक इट वेरी नेगेटिवली बिकॉज पॉजिटिव थिंग्स आर डेफिनेटली कमिंग अप फॉर यू. तो दिसंबर एक थोड़ा चेंजेस वाला मंथ हो सकता है, बट डेफिनेटली आपके लिए अच्छी चीज़ें लेकर आएगा. ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन टू योर हेल्थ. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ पर्सपेक्टिव ऑल्सो ओवरऑल हेल्थ आपकी ठीक रहेगी ऐसा मुझे लगता है. हाँ, मेंटल टेंशन ज़रूर हो सकती हैं एंड क्यों नहीं होंगी. लाइक from in all walks of life you've been suffering so much, तो डेफिनेटली एक वो मेंटल टेंशन, एक
mentally heavy feel करना या mental pressure feel करना is very normal, but you will be able to get out of it. You want to get out of this energy, and you will definitely get out of this energy. All right, okay, let's move on to Leona. Okay, so Leo, let's start your reading. We have the King of Pentacles and we have the Eight of Swords. All right. So, in terms of relationship, अगर हम बात करें तो इस महीने आपकी फैमिली आपका फोकस हो सकती हैं. You want to, you will be in that energy where you will be very very motivated, and you would want कि मैं अपनी फैमिली को सब कुछ ला के दूँ, जो भी वो डिज़र्व करते हैं, जो भी मैं अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं टोटली खुद को उस चीज़ में झोंक दूँ कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ. So family will definitely be the center of your life in the month of December. Okay, आपकी जो भी goals होंगे या जो भी आपके decisions होंगे at least in the month of December, वो काफ़ी family oriented होंगे. अगर हम finances की बात करें तो ऑब्वियसली फिनेंसेस आपके बहुत अच्छे रहेंगे. किंग ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, विच शोज कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेफिनेटली रहेगी और एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ आप अपनी जी पाएंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर. सो फिनेंसेस विल नॉट बी एन इशू फॉर यू एटलीस्ट दिस मंथ, बट जितनी तेज़ी से फाइनेंसेस आपके आएंगे उतनी ही तेज़ी से खर्चे भी बढ़ेंगे. तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेफिनेटली आ रही है, बट खर्चे भी आपके बढ़ रहे हैं. ऑल राइट. इन टर्म्स ऑफ करियर, अगेन आप एक बहुत स्टेबल वर्क एनवायरनमेंट में हैं. आप हो सकता है कि अपना बिजनेस करते हो. ये मुझे बिजनेस कार्ड है ये, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो जॉब वाले लोग हैं उनके लिए दे शुड नो दैट देयर जॉब विल बी सिक्योर, दे विल बी स्टेबल दिस मंथ. तो आपका जॉब के रिगार्डिंग या जॉब स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली ये यूनिवर्स की तरफ से एक साइन है कि आपका जो जॉब है वो ठीक रहेगा, वो स्टेबल रहेगा. तो आप चिंता ना करें. और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपका बिजनेस इस महीने आपको प्रॉफिट काफ़ी अच्छा होगा और आपका करियर काफ़ी अच्छी डायरेक्शन में ग्रो करेगा. ऑल राइट. सो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई डू नॉट सी एनी मेजर इश्यूज कमिंग अप हियर. So for Leos, it is a very very good reading, a very positive reading. बट हाँ, आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी हेल्थ रूटीन एक बनाइए. अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलरली वॉक्स पे जाते हैं, अपने फ्रेंड्स से फैमिली के क्लोज रहते हैं, सो डेफिनेटली योर हेल्थ विल बी इन अ वेरी गुड शेप. ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर वर्गोस. Okay. We have the Two of Cups and
The Ace of Wands. Okay. So Virgos, Two of Cups. This is a soulmate card. सो डेफिनेटली आपका अगर रिलेशनशिप को लेके कोई भी क्वेश्चन है, सो नो दैट यू नो दिस रिलेशनशिप इज़ द वन फॉर यू, योर पार्टनर इज़ द वन फॉर यू. अगर आप चाहते हैं कि इस महीने आप यू नो अपने पार्टनर को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, या अगर आप सोच रहे थे कि इस रिलेशनशिप का, मेरे इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर होगा, तो डेफिनेटली फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहेगा. ये एक सोलमेट कार्ड है, तो आपका डेफिनेटली पास्ट लाइफ से भी कोई कनेक्शन रहा होगा अपने पार्टनर से. यू नो आप एक दूसरे के सोलमेट्स हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी बीच में. आप काफ़ी अच्छी यू नो एक बॉन्ड आपका डेवलप होगा विद टाइम. तो ओके, सो लव रिलेशनशिप को लेके यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज है. ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू योर फाइनेंसेस नाउ. इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, डेफिनेटली एक यू नो नया कोई नई फाइनेंशियल ग्रोथ, अच्छी पॉजिटिव फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है. हो सकता है कि ये आपको जो प्रमोशन चाहिए था या जो पे हाइक आपको चाहिए था, उसके हिसाब से यू नो यू विल बी कॉम्पनसेटेड. डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास आ रही है. एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो यू नो एसेस जनरली शोज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू. तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई नया सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो रहा हो, आप अपना कोई साइड हसल शुरू करें, या अपनी हॉबी को यू नो एज एज अ करियर लेने लग जाएं. सो ऑब्वियसली उस हिसाब से भी आपके पास न्यू सोर्स ऑफ इनकम आ सकता है. ऑल्सो यू नो यहाँ पे मुझे फीलिंग आ रही है कि थिंग्स लाइक अफिलिएट मार्केटिंग एंड यू नो और मे बी जस्ट trading online could be a better career option for you. तो करियर के हिसाब से, आपके फाइनेंसेस के हिसाब से, लव लाइफ के हिसाब से ये एक अच्छी रीडिंग है. दीज आर वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड्स. मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. And December definitely has a lot to offer for you. In terms of health also, क्योंकि आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, यू नो आपके लव्ड वंस जो आपके पार्टनर हैं, आप उनके क्लोज रहेंगे, तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा महीना है जहाँ पे आप अच्छी हेल्थ भी इंजॉय करेंगे. ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू लिब्रा नाउ. All right. The Judgment card and the King of Swords. Okay. So, Libras. All right. Let me channelize your energies. All right. So, you know, the Judgment card here shows that whoever your person of interest is, हो सकता है कि आप उनको यू नो ऑन वेरियस लेवल्स आप जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप कहाँ तक जाएगा आगे, या यू नो ये क्या ये इंसान आपके लिए सही पार्टनर है या नहीं है.
तो वो क्लैरिटी आपको दिसंबर के महीने में डेफिनेटली मिलेगी. King of Swords, swords have have an airy energy. Also, swords clarity लाते हैं. It is believed that swords generally indicate clarity. सो डेफिनेटली आपका जो भी रिलेशनशिप है, जो भी इश्यूज हैं, इश्यूज नहीं हैं, आप सिंगल हैं, आप you want to get into a new relationship or whatever, so definitely you will get a clarity regarding your relationship. जो भी चीज़ें हैं आप सोच समझ के अपने लिए एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे. सो या दिस इज अबाउट इट. Now in terms of finances, again बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब सिचुएशन नहीं है, लेकिन whenever you spend, try and not spend on futile things. Try and spend on things which are which are needed. So अपने please prioritize. As far as finances are concerned, अपनी priorities set कीजिए and make sure that you buy what you actually need. You spend on things which are actually necessary and don't spend mindlessly. Okay? Alright. So now moving on to your career. Your work is being definitely observed by your seniors. Like आप उनकी नज़र में हैं. आपके सीनियर्स डेफिनेटली ये देखना चाहते हैं एंड दे वांट टू बी श्योर दैट ओके यू आर द वन वर्किंग. अगर आप सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्रेडिट एंड बेनिफिट जो भी आपके करियर के हिसाब से, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, आपके बिजनेस के हिसाब से जो भी आपके लिए बनता है, वॉट एवर इज सूटेबल, यू विल डेफिनेटली गेट इट. बट यहाँ पे मेहनत की और ऑनेस्टी की ज़रूरत है. अगर आप ये दोनों चीज़ें मेंटेन करके चलेंगे देन डेफिनेटली योर करियर कैन ग्रो to a very good, very great extent, So अपने हार्ड वर्क और परसेवरेंस में कोई कमी मत आने दीजिए. ऑल राइट. नाउ मूविंग ऑन टू योर हेल्थ. हेल्थ आपकी ओवरऑल ठीक रहेगी. थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे अपने ध्यान दें. मेंटल हेल्थ की तरफ ज़्यादा काम करें और ओवर थिंकिंग या फालतू के स्ट्रेसेस से अननेसेसरी स्ट्रेसेस से थोड़ा बचिए. ऑल राइट. नाउ we're done with the reading for Libra. Now let us move on to Scorpio. ये जो आवाज़ आपको आ रही होगी ये ट्रेन की आवाज़ है. A train is passing by. All right. Okay. So for Libras we have the card of Two of Pentacles. Sorry. It is the Page of Pentacles reversed. Okay. And then along with it we have the Hermit. All right. All right, Scorpios. If you are in a relationship, this relationship definitely needs a lot of re-evaluation. Okay, you need to think through and talk things out with your partner. A lot of issues that maybe
lining your relationship. So you need to speak, you need to communicate. Communication will be a very very important part of your relationship in the month of December. Okay, and in case you're single, then before you get into any relationship, it is better that you analyze, you know dwell deep inside you, understand what you want, and then move on to any relationship if you want to save yourself from getting hurt. All right, so now moving on to your finances, we have the reversed page of pentacles, which shows that your finances are not stable as of now. um, हो सकता है कि आपने कोई जॉब लॉस फेस किया है, आपके फाइनेंशियल इश्यूज डेफिनेटली दिसंबर के महीने में बढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा माइंडफुल होके चलिए, थोड़ा अपने खर्चे को कट डाउन कीजिए, थोड़ा सा सोच समझ के चलिए। इन्वेस्टमेंट भी इम्पल्सिवनेस में ना करें, कोई इम्पल्सिव डिसीजन ना लें, बिना सोचे समझे शेयर मार्केट में तो बिल्कुल भी पैसे ना लगाएं अगर आप नए हैं तो। इन केस यू आर ऑलरेडी familiar with the share market, still I would suggest that refrain from investing huge money, at least in the month of December. All right, so now moving on to your career. करियर के पर्सपेक्टिव में भी आप श्योर नहीं है कि आपका जो करियर है वो किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, या चीज़ें आपके लिए सही डायरेक्शन में जा रही हैं या नहीं जा रही हैं. So this could also be indicating the fact that probably you want to take a sabbatical from your in career. हो सकता है आप आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, आप कोई कोर्स परस्यू करना चाहते हैं. तो अगर ऐसा कुछ है तो उसके बारे में आराम से ध्यान से सोचिए, एंड डेफिनेटली यू शुड टेक एक्शन. ऐसा मुझे इन कार्ड्स को देख के लगता है कि ये टाइम खुद को अपस्किल करने का है. ये टाइम कोई नई स्किल को खुद को अपग्रेड करने का टाइम है. कोई नई स्किल सीखिए, कुछ नया ऐसा कीजिए जो आपकी प्रोफाइल पे ऐड ऑन करे, so that you benefit out of this time that you're getting off your career. तो बेसिकली इस टाइम पे कोई भी जॉब ढूंढना, नया जॉब ढूंढना या कुछ भी ऐसा करना मैं नहीं सजेस्ट करूँगी. इट इज़ बेटर कि ये टाइम आप अपने को अपग्रेड और अपस्किल करने में लगाएं, वो आपको कहीं ज़्यादा फ़ायदा देगा. ऑल राइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू योर हेल्थ. अगेन यहाँ पे स्ट्रेस मुझे बढ़ता हुआ ज़्यादा लग रहा है. आप नेसेसरी स्टेप्स लें खुद को बिजी रखने के लिए, खुद को ओवर थिंकिंग से बचाने के लिए. अगर आप ओवर थिंकिंग में नहीं जाएंगे, अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचेंगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी. इन केस यू टेक अननेसेसरी स्ट्रेस, then definitely you are going to suffer. It is all in your hands. अगर आप mindfully पॉजिटिवली चीज़ों को लेंगे तो डेफिनेटली कम सफ़र करेंगे. ऑल राइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू Sagittarius. Okay, so Sagittarius, we have
the King of Cups, and we have the Magician. Wow. Okay, so Sagittarius, we have the six of wands, and we have the seven of swords. Okay, so Sagittarius, what I feel for you, Sagis, that in the month of December, on the outside, your relationship may look like the perfect relationship. You may feel कि ये तो बेस्ट रिलेशनशिप है, मेरा पार्टनर तो बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है. But the month of December may also give you the biggest shock of your life. Okay, where हो सकता है कि कहीं ना कहीं under the carpet there are some, there is some deceit, there are some lies, which may cost heavily, to your relationship. So, definitely, in case you feel something is off, you should speak to your partner, you should communicate. Um, सिर्फ ऊपर ऊपर की फीलिंग्स पे या ऊपर के दिखावे पे ना जाएं, और अंदर क्या है ये समझने की कोशिश करें. बिकॉज एटलीस्ट फ्रॉम द रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव, ये बहुत अच्छी रीडिंग मुझे नहीं लग रही. आई फील दैट you may have to face some harsh truths about your relationship. So yeah, definitely it can be a little too much for you to handle. So just prepare yourself, and I hope that nothing like this happens to you. All right. Now, as far as your finances are concerned, definitely there is some, there are some triumphs coming. You will be able to earn very well, and कहीं ना कहीं आपको पे राइज या पे राइज बट होगा, आपको मिलेगा डेफिनेटली. या हो सकता है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा करे अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो. But there will be a lot of people who are jealous of you. तो अगर आप बिजनेस में हैं, हो सकता है आपको जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी इमेज टार्निश करने की कोशिश करें, आपको किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें. तो एक तो वो इशू आपके साथ हो सकता है. दूसरा, अगर आप इफ़ यूर रेगुलर एम्प्लॉय, अगर आप जॉब करते हैं, तो डेफिनेटली आपके ऑफिस में जो आपके कोलीग्स हैं, जो बाकी लोग हैं, फॉर दैट मैटर, हो सकता है आपके मैनेजर भी आपके इस नए अचीवमेंट से खुश ना हो. एंड समवेयर डाउन द लेन he or she might try to trouble you in different ways. So yeah, just be mindful and be beware. करियर में भी आपको यू नो सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं, आपको सक्सेस मिल सकता है. बट साथ ही आपको ऐसे लोगों के साथ भी डील करना पड़ेगा जो आपकी सक्सेस देख के खुश नहीं होंगे. और ये आपके अपने भी हो सकते हैं, आपके अपने रिलेटिव्स हो सकते हैं. एंड देर इज़ अ वेरी हाई चांस दैट it will come as a shock of life for you.
कि कभी कभी हम सोचते हैं ना कि यार ये इंसान तो इज अ बिग वेल विशर फॉर मी, but that might not be the case and it will come as a shock to you. Anyway, let's move on to your health. Overall, the health would be good, but there are some internal issues that you're suffering from. In case ऐसा कुछ है तो please speak up, reach out to your friends and family who you can trust and just tell them. Have, communicate. Have that clarity in your mind. And if there is anything that you want to share, that you want to speak about, then definitely share it, because otherwise it can cost you a lot in terms of health. All right, now moving on. I wish all the best to you, Sajis. But yeah, moving on. Let's see what the month of December has to offer for Capricorns. Five of Cups and Five of Pentacles. Okay. All right. So a very heavy energy, Capricorns again. You know, in case you are in a relationship, there could be feelings of abandonment, or there could be feelings that, oh, even after having a partner, I don't have a partner because there is no understanding between, there is no love left. And this can also be a stalemate kind of an energy. So in case you're wondering whether you should stay in this relationship or not, then I would suggest that your relationship has run its course. You should let go of this relationship because it has nothing to offer as of now. Please save your peace and move on. In case you're suffering in your relationships, for the ones who are wondering whether they are in the right relationship or not, you should definitely move on. Alright, this is not the relationship for you. In the future, there will be more opportunities in terms of relationship. That's when you can explore. But at least for the coming 2 to 5 months, try and spend some time um, indulging in self love and um, just try and understand what you want out of a relationship. And that's when you should even think of getting into another relationship. And अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ठीक रिलेशनशिप में, सही रिलेशनशिप में हैं या नहीं, then definitely your relationship has run its course. You should let go of it now. It is time you let go. Okay. Now, in terms of finances, again, यहाँ bankruptcy के chances मुझे लग रहे हैं for a few of you. Like, I'm not saying for all of you, but for a few of you. And definitely, December, in terms of finances, in general, almost for all of you, whoever is viewing this video, and अभी आप लोग देख रहे हैं और आपका अगर जोडियाक साइन कैप्रिकॉर्न है, तो डेफिनेटली दिसंबर के महीने में आपका खर्चा ज़्यादा हो सकता है, अर्निंग कम होगी। तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली सिचुएशन है यहाँ पे।
हो सकता है कि आपके कुछ सडनली खर्चे अपने बढ़ जाए, तो उस सेंस में ये थोड़ी सी डिस्टर्बिंग रीडिंग है आपके लिए। आपको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। फाइनेंशियली आपको हो सकता है कि थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़े, लेकिन दिसंबर ख़त्म होते होते डेफिनेटली आपके फाइनेंसेस स्टेबलाइज होंगे फॉर श्योर। तो आप परेशान मत होइए। आई एम श्योर 2026 विल डेफिनेटली ब्रिंग समथिंग गुड फॉर यू। जो भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो दिसंबर में आएंगे ज़रूर, लेकिन उनको आप दिसंबर में ही पीछे छोड़ के और आगे बढ़ेंगे एक नई एनर्जी और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ऑल राइट, so now in terms of career, what I feel is that आपके पास जो opportunities हैं, जो नई opportunities आपके पास आ सकते हैं। ये 2 कप्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फुल हैं और पीछे एक एक रोज भी है which is blooming, so it shows that you definitely have new opportunities। लेकिन अगर आपका जॉब लॉस हुआ है, सडन टर्मिनेशन हुआ है, या आपके करियर में आप एक स्लम्प फेस कर रहे हैं, यू आर सो बिजी फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पार्ट ऑफ इट कि आपको पॉजिटिव चीज़ें दिख ही नहीं रही। So, here it is very important for you to change your perspective and view things from a different perspective altogether, from a more positive perspective, change the narrative. Instead of thinking, why me, think what I have to learn from this situation। अगर ये करियर में मेरे कोई ब्रेक आया है, या इस करियर या मेरे करियर में कोई ना कोई इशू आया है, so how can I deal with this situation and move on victorious instead of drowning in self pity। तो वो चीज़ मत कीजिए, नेगेटिविटी की तरफ मत बढ़िए। Look at the positive things in life, be grateful for it, gratitude को प्रैक्टिस कीजिए, एंड डेफिनेटली जो आपके आसपास नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके सामने ज़रूर आएंगी फॉर श्योर। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अगेन यहाँ पे मेंटल परेशानियाँ क्योंकि बढ़ती हुई दिख रही हैं, तो फिजिकल हेल्थ तो आपकी ठीक रहेगी, बट मेंटली आप परेशान रह सकते हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। इसको काउंटर करने के लिए आई वुड लाइक really emphasize on you practicing meditation, because meditation and spirituality, indulging in any form of spirituality, will help you navigate this difficult situation of which the month of December has to offer to you. All right, now moving on to Aquarius. Okay, now let's move on to Aquarius. So Aquarius, the cards that we have today are the Seven of Pentacles, and we have
The High Priestess. Okay, all right. So the High Priestess is in reverse, and we have the Seven of Pentacles. Okay, so in terms of relationship, you're definitely trying to work towards maintaining your relationship, towards focusing on the good part of your relationship, towards making things work for you. But deep down, you somewhere know that you may be fighting a losing battle there. So internally, this relationship is definitely not giving you peace, even though you're working to sustain the relationship, putting in all your energy to make this sustain. All right. So, what I would suggest is that you think things through, and in case you feel that this relationship is not working for you, then it is worth the wait. Right now, do not take any decision. It is not the right time. Just give some time to yourself and your partner as well, and then probably you can take some decision. But at least for the first 2 weeks of your relationship, do not take any decision in haste. Okay, just wait and watch. That is what the cards are saying, that whatever be the situation, just wait and watch. हो सकता है कि चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट कर जाए. ओके, now moving on to finances. आप डेफिनेटली अपने finances को स्टेबलाइज करने के लिए आपने काफ़ी काम किया है, एंड ये काम आपका डेफिनेटली अब फ्रूटिफाई हो रहा है. इट इज़ गिविंग यू फ्रूट्स, इट इज़ बेरिंग फ्रूट्स. आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स थे या जो भी आपने फाइनेंशियली स्ट्रगल किया है अब तक, it has finally started showing its positive results. तो डेफिनेटली वो फीलिंग ऑफ सक्सेस है यहाँ पे, बट यू ऑल्सो डू नॉट फील फुल्ली सेटिस्फाइड. बट अपने फाइनेंसेस पे फोकस रखिए, अपने गोल पे फोकस रखिए, एंड आई एम श्योर ये जो फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन है, स्लाइट फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन जो है, ये भी विद टाइम चली जाएगी, बिकॉज योर फाइनेंसेस लाइक फाइनेंशियली यू विल डू वेरी वेल इन द मंथ ऑफ दिसंबर. करियर में भी क्या है कि सारी चीज़ें ठीक हैं, बट इंटरनली कहीं ना कहीं अनरेस्ट है कि मुझे करियर में और भी कुछ करना है, मुझे कुछ नया करना है, कुछ बड़ा सोचना है, या कुछ बड़ा अचीव करना है, या हो सकता है कि आपके करियर गोल्स इस समय आप रीइवैल्यूएट कर रहे हो. सो डू नॉट टेक एनी डिसीजन इन हेस्ट, टेक योर टाइम, सोच समझ के अच्छे से डिसीजन लीजिए. एंड कुछ भी ऐसे सडनली हाँ या ना करें किसी भी करियर अपॉर्चुनिटी को जो भी आपके पास नई आ रही है. तो उसके बारे में अच्छे से सोचिए समझिए, कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए, एंड उसके बाद जाके डिसाइड कीजिएगा. बट एटलीस्ट दिसंबर के फर्स्ट 2 वीक्स आप प्लानिंग करने में, सोचने में, इन चीज़ों में स्पेंड कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है. ओके, in terms of health, again physically I do not see anything bad as such, but yes, it is very important for you to uh, take care of what you eat, how you eat, and at what time you're eating. बिकॉज एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, एक हेल्दी ईटिंग रूटीन मेंटेन करना, एंड अपनी फूड हैबिट्स को पॉजिटिवली चेंज करना यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी लगता है. ऑल राइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट zodiac sign of the celestial belt.
uh, we will now talk about Pisces. Okay. All right. So Pisces, we have the Queen of Cups, and we have the Magician reversed. All right. Okay. So Pisces, I do feel that you're very, very emotionally involved in the relationship, in the current relationship that you're in. हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको इमोशनली काफ़ी स्टेबल फील कराते हैं, इमोशनली बहुत नर्चरिंग है, या आप इमोशनली बहुत नर्चरिंग है अपने पार्टनर के लिए. आप डेफिनेटली एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं इमोशनली, और ये रिलेशनशिप आपका आगे काफ़ी टाइम तक चलने वाला है. आपके लिए ये एक अच्छा रिलेशनशिप रहेगा. बट यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी की थोड़ी कमी है, क्योंकि मैजिशियन रिवर्स है. आपके जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो आपकी प्रैक्टिकलिटी है, वो कहीं ना कहीं इमोशंस उसको ओवर पावर कर जा रहे हैं. इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा फोर फ्रंट पे हैं इस समय. तो टू मेक दिस रिलेशनशिप ऑल द मोर फुलफिलिंग, इट इज़ बेटर कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे भी ध्यान दें अपने रिलेशनशिप में. इन केस यू सिंगल, देन आई वुड सजेस्ट कि जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए कि आपको क्या चाहिए in a partner, that is when you should move on to any new relationship. Because आप बहुत इमोशनल हैं. इन केस आप बिना सोचे समझे किसी रिलेशनशिप में कमिट कर देंगे, तो हो सकता है कि आगे जाके आपको थोड़ी सी हर्डल्स का, डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़े. ओके. Now moving on to your finances. Again, finances, अगर आप financial part को लेके थोड़े emotional होंगे, मतलब कोई आपके पास आया और उसने बोला कि यार मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, अभी financially suffer कर रहा हूँ या कर रही हूँ, and I need your help, तो आप इमोशंस में आके हेल्प कर दें. हो सकता है कि अरे यार नीडी है, उसको मेरी हेल्प चाहिए, तो मैं सपोर्ट कर दूं. या अरे ये तो दोस्त है, तो मैं सपोर्ट कर दूं, कोई इशू नहीं है, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो हियर व्हाट विल हैपन इज कि ये जो फ्रेंड है या ये जो इंसान है, ये आपके इमोशनल होने का फ़ायदा उठा सकते हैं. ये हो सकता है कि आप मनी लेंड करें, या किसी को ट्रस्ट करके आप पैसे दें, तो वो पैसे आपके वापस नहीं आए. आपको हो सकता है कि वो पैसे आपके वापस ना मिलें आपको. तो बेटर है कि आप इस समय किसी किसी भी तरीके के लेन देन से, लोन लेने से, या किसी भी ऐसी सिचुएशन से बचें. ओके. In terms of career, you have a lot of potential आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप उस पोटेंशियल को पूरा यूज़ नहीं कर पा रहे, या पूरा उसको फोर फ्रंट पे नहीं ला पा रहे, आप उसको डिस्प्ले नहीं कर पा रहे अपने बॉसेस के सामने, अपने ऑफिस में, अपने कोलीग्स के सामने, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं. एंड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इन द business world, or whatever, in whichever field you're working,
इमोशंस की आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, when you're working. So this is a hard fact of life that you must come face to face with, and you must focus on making yourself more practical. You must focus on your skills, on how you can come forward as a more confident, as a more skilled person. So focus on that instead of just um, focusing on emotions, or trying to portray yourself as a very emotional person, because this will definitely not go in your favor. Okay, in terms of health, I don't see anything negative here as such, but definitely अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए एक प्रॉपर रूटीन मेंटेन करें, चाहे वो आपका खाना है, आपका स्लीपिंग रूटीन है, आपका एक्सरसाइज रूटीन है, कोई भी आपकी जो लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल मेंटेन करने का जो आपका तरीका है वो ठीक होना चाहिए. All right, so with this we've come to the end of the video. I hope you liked it. Uh, Please like, share and subscribe to our channel, and I will come again. I will meet you soon with another interesting video. Until then, please keep supporting us. In case you have some new suggestions for me, तो उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. आपके पास कोई नए टॉपिक्स हों जिन पे मैं वीडियो बनाऊं, या आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई भी इश्यूज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली try my best to reply to all of you individually. Thank you so much.